Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study Sanskaras various references. So let's start the lecture. See, Sanskaras are the religious activities for the purification of human life. But actually Sanskaras are the guiding principle of human life. You may consider that some of the sanskaras have lost their relevances at present time, but the objective of sanskara has relevance even today. Therefore, sanskaras must be understood and followed by us to get a beautiful social life. Right? Sanskaras can be defined as religious activities of purification and rituals performed for the intellectual, mental and Vedic sophistication of the individual so that one can become a fully developed member of society. And sanskaras have twofold importance, right? On one hand, sanskara prepares the individual to accept various personal and social roles appropriate to the times, and on the other hand, sanskaras serve to integrate him with the society. So in this way we can define the sanskaras. See, in order to achieve the important goals or four purusarthas, dharma, artha, kam and moksha, right? So in order to achieve important goal or four purusarthas of life, some special rituals have been developed on religious basis, and these rituals are called as samskaras, right? And in Grah Sutra of Sutra Sahit, 16 sanskaras have been recognized, right? And these are the 16 sanskaras, right? In the previous lecture we have studied 9 sanskaras, right? So we have studied sanskaras prior to birth, right? And the sanskaras which are prior to birth, first is Garbhadharan, second is Punsvansa, third is Simantonayan, fourth, right, sanskaras related to infancy, fourth is Jat Karma, fifth Namkaran, sixth Niskraman, seventh Annaprasan, eighth Churakaran, ninth Karnavedan. So we have studied these 9 sanskaras in the previous lecture. In this lecture we will study the sanskaras which are related to childhood, sanskaras which are related to adulthood, and sanskar which is related to posthumously or antyeshti, right? So rest of the sanskaras would be studied by us today. So let's study the 10th sanskara which is Vidya Arambh. Clear? See, Vidya Arambh, here Vidya Arambh is a Sanskrit word, right? And Vidya, the means of Vidya Arambh is, right, विद्या का आरंभ होना और knowledge initiation, right? So simply we can say that knowledge initiation या beginning of the education, right? So the meaning of Vidya Arambh is beginning the education, or we can say that knowledge initiation, right? Knowledge initiation. See, ये जो संस्कार है ये तब परफॉर्म किया जाता है जब child's mind become capable of receiving education, राइट? यदि जैसे ही चाइल्ड का बर्थ हुआ है और उस समय ही यदि हम उसको बच्चे को अगर नॉलेज या कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे सो डेफिनेटली ही कांट ग्रास्प, राइट? जब बच्चे का माइंड कैपेबल हो जाएगा, राइट, टू रिसीव education or information, only then he can learn, right? So this sanskaras is performed when the child's mind become capable of receiving education, then this संस्कार इज परफॉर्म्ड, राइट? और इसकी जो शुरुआत है वो नॉलेज ऑफ लेटर से होती है, राइट? एंड थ्रू दिस संस्कारास या थ्रू दिस संस्कार द नॉलेज ऑफ लेटर इज प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन, राइट? अकॉर्डिंग टू पंडित भीमसेन शर्मा, right, Pandit Bhimsen Sharma has emphasized on completing it between the 5th and 7th year of the birth. तो यहाँ पर इसकी हमको टाइमलाइन भी पता चल चुकी है, राइट? दिस विद्या आरंभ संस्कार मस्ट बी परफॉर्म्ड बिटवीन 5th एंड 7th ईयर ऑफ द बर्थ, क्योंकि 5 से 7 साल के बीच में बच्चे का जो माइंड है वो इतना डेवलप हो जाता है कि जो
चाइल्ड है वो एजुकेशन को रिसीव कर सकता है, राइट। अब ये जो संस्कार है ये कब परफॉर्म किया जाता है और कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो वो समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि व्हेन द चाइल्ड्स माइंड बिकम कैपेबल ऑफ रिसीविंग एजुकेशन देन दिस विद्यारंभ संस्कार इज परफॉर्म्ड। सेकंड थिंग इज दैट दिस इज परफॉर्म्ड बिटवीन द फिफ्थ एंड between the fifth and seventh year of the birth. Third is this sanskar is not performed in the month of Asad and Kartika, right? So यहाँ पर जो आषाढ़ एंड कार्तिका है, मे बी जुलाई एंड अगस्त, उसमें ये संस्कार जो है परफॉर्म नहीं किया जाता है, राइट। सो एक्सेप्ट आषाढ़ एंड कार्तिका, राइट, आफ्टर वर्शिपिंग गॉड गणेशा, सरस्वती, राइट, बृहस्पति, गण देवता, राइट, ऑन द ओकेजन ऑफ ऑस्पिशियस डे, जो विद्या आरंभ है ये जो है स्टार्ट जो संस्कार है ये परफॉर्म किया जाता है। तो ऑन ऑस्पिशियस डे जो चाइल्ड है, राइट, चाइल्ड या जो चाइल्ड है उसकी पुस्तक पर जो गुरु है बाय मेकिंग द चाइल्ड सिट इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड बाय राइटिंग ओम स्वास्ति एंड नमः सिद्धा, ये लिखवा कर जो है एजुकेशन का जो है शुरुआत की जाती है, राइट। क्योंकि इसमें जो शुरुआत में नॉलेज दी जाती है वो लेटर्स की दी जाती है। तो एक ऑस्पिशियस डे पर जो गुरु है या जो टीचर है वो ओम स्वाति या नमः सिद्धा लिखवा कर जो है एजुकेशन देना प्रारंभ करते हैं, राइट। 11th इज उपनयन संस्कार और सेक्रेड थ्रेड संस्कार हो जाएगा या सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी या सेक्रामेंट हो जाएगा। सो जो उपनयन संस्कार है, सी उपनयन संस्कार हैज utmost importance in Hindu religion और in Hinduism. So उपनयन संस्कार is the utmost important संस्कार in Hindu rituals और in Hindu society. अब यहाँ पर उपनयन का मतलब क्या होता है, राइट। The means of उपनयन is bring near, right, bring near, that is to take the child to the guru for the purpose of education. तो बच्चे को गुरु के पास ले जाना for the purpose of education, ये उपनयन का अर्थ होता है, right. So the meaning, literal meaning of उपनयन is to bring near, that is to take the child to the guru for the purpose of education, and this sanskar is performed when the child becomes entitled to acquire the complete knowledge, or we can say that higher knowledge, right, and special knowledge. So this sanskar is performed when child becomes entitled to acquire the complete knowledge, right. Or according to Smriti, a person becomes a Dvij, right, only through the उपनयन ceremony, राइट। तो यहां पर उपनयन जो सेरेमनी है, यहां पर द्विज का मतलब समझना, द्विज का मतलब होता है टेकिंग बर्थ ट्वाइस या 2 बार जन्म लेना। सो इन हिंदुइज्म जो है द्विज का कंसेप्ट माना जाता है, राइट। ह्यूमन गेट बर्थ, जब वो अपने माँ की गर्भ से बाहर आता है तो वो उसका पहला बर्थ होता है, और सेकेंड बर्थ कब होता है, व्हेन ही परफॉर्म्स द सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ है कि वो है जब मदर के जो गर्भ है, राइट, मदर के गर्भ से जब वो बाहर आता है तो वो उसका फर्स्ट जो है बर्थ होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज, राइट, नॉलेज के माध्यम से ही वह इस दुनिया को जान पाता है। इसीलिए यहाँ पर हिंदू धर्म में इस द्विज का कंसेप्ट माना गया है, विच मीन्स वी कैन से दैट द नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, राइट। इसीलिए जो उपनयन संस्कार है, राइट, इसीलिए उपनयन संस्कार को अटमोस्ट जो है इंपॉर्टेंस दिया जाता है, राइट। So according to Smriti, a person becomes Dvij only through the Upnayan ceremony. So through Upnayan ceremony, he becomes Dvij, which means that he gets birth twice and he gets birth second time. और इस संस्कार के माध्यम से he gets education, he gets knowledge, and by this education or knowledge, he can understand this world easily, right? उपनयन is also called यज्ञोपवीत और जनेऊ, राइट। सो जो उपनयन है
उसको ही क्या कहा जाता है, यज्ञोपवीत भी कहा जाता है और जनेऊ भी कहा जाता है। और इन एंशिएंट टाइम जो हिंदुइज्म में जो भी हिंदुइज्म के जो फॉलोवर थे वो जो यज्ञोपवीत है या जनेऊ है उसको जरूर ही धारण करते थे। राइट, हियर जो जितने भी संस्कार हमने पढ़े हैं वो संस्कार सभी चाइल्ड के लिए या उनका जो टाइम पीरियड वो फिक्स होता था, बट फॉर द यज्ञोपवीत संस्कार जो टाइम लाइन है वो हर एक अकॉर्डिंग टू वर्ण सिस्टम, राइट, अकॉर्डिंग टू वर्ण सिस्टम द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ दिस संस्कार इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वर्ण सिस्टम। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस संस्कार इज परफॉर्म्ड फॉर अ ब्राह्मण चाइल्ड एट द एज ऑफ 8th ईयर। तो यदि ब्राह्मण चाइल्ड है देन दिस संस्कार इज परफॉर्म्ड एट द एज ऑफ 8th ईयर। एंड इफ द चाइल्ड इज child is kshatriya, if child is kshatriya then at the age of 11th year this sanskar is performed. And if child is from Vaishya Varna, right, Vaishya Varna, then this sanskar is performed at the age of 12th year। और जो 12th ईयर पर जो है इसका परफॉर्मेंस किया जाता है और इसका जो पूरा का पूरा जो पर्पस है वो एजुकेशनल ही है, राइट। सो द पर्पस ऑफ दिस संस्कार इज एजुकेशनल। अब अगर हम यहाँ पर देखें, सो अकॉर्डिंग टू याज्ञवल्क इट्स हाईएस्ट पर्पस इज टू स्टडी द वेदास बिकॉज आफ्टर 16 ईयर ऑफ एज वैदिक एजुकेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन हिंदुइज्म। तो 16 ईयर के बाद में यदि वैदिक एजुकेशन जो है इफ चाइल्ड जो है प्राप्त करता है तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। देयरफॉर it is required in Hinduism that before 16 year जो वैदिक नॉलेज है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो थ्रू दीज मतलब इस संस्कार के माध्यम से जो है यज्ञोपवीत संस्कार परफॉर्म किया जाता है और फिर वहाँ से जो वैदिक जानकारी है या वैदिक नॉलेज है वो चाइल्ड को जो है प्रोवाइड कराया जाता है। The length of जनेऊ और यज्ञोपवीत इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द चाइल्ड। तो जितनी लेंथ चाइल्ड की होती है उतनी ही जो लेंथ होती है वो यज्ञोपवीत की भी होती है, राइट। एंड दिस यज्ञोपवीत इज मेड अप ऑफ 3 थिक थ्रेड्स। तो इसमें 3 जो है थिक थ्रेड्स होते हैं जो कि 3 ऋणों के बारे में उस चाइल्ड को रिमाइंड कराते हैं। और जो 3 ऋण हैं उनमें से एक हो जाएगा देव ऋण हो जाएगा, पितृ ऋण हो जाएगा और ऋषि ऋण हो जाएगा, राइट। सो द यज्ञोपवीत इज मेड अप ऑफ 3 थिक थ्रेड्स और जो 3 थिक थ्रेड्स हैं ये चाइल्ड को 3 ऋण के बारे में जो है रिमाइंड कराते हैं जो कि ऋषि ऋण, देव ऋण एंड क्या हो जाएगा, पितृ ऋण हो जाएगा। साथ ही साथ आफ्टर गिविंग द गायत्री मंत्र, बच्चे को जो है गायत्री मंत्र जो है प्रोवाइड कराया जाता है, गायत्री मंत्र प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ जो रूल्स हैं और जो ड्यूटीज हैं सेलिबेसी की, जो ड्यूटीज हैं सेलिबेसी की और जो रूल्स हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, गायत्री मंत्र दिया जाता है और उसके बाद में ये जो संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार इज परफॉर्म्ड और जो चाइल्ड है उसको यज्ञोपवीत या जनेऊ जो है वो धारण कराया जाता है। नेक्स्ट इज वेदारंभ, राइट। एंड जो द लिटरल मीनिंग ऑफ वेदारंभ इज स्टडी ऑफ वेदास या बिगिनिंग द स्टडी ऑफ वेदास, राइट। जो वेदा आरंभ, राइट, वेदारंभ संस्कार है, राइट, वेदारंभ संस्कार हैज बीन मेंशन्ड इन व्यास स्मृति। तो इसका जो मेंशन है वो व्यास स्मृति में है। एंड दिस संस्कार इज परफॉर्म्ड व्हेन बॉयज और चाइल्ड गेट्स मेंटल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, राइट। तो जब बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाता है आफ्टर दैट दिस संस्कार इज performed, right. Earlier the उपनयन संस्कार और the वेदारंभ संस्कार performed simultaneously, which means that जैसे ही उपनयन संस्कार परफॉर्म होता था उसके बाद से ही चाइल्ड को वैदिक नॉलेज या स्टडी ऑफ जो वेदास था वो स्टार्ट हो जाता था, राइट। परंतु यहाँ पर एक समस्या थी, वो क्या थी, राइट। वैदिक नॉलेज और द स्टडी ऑफ वेदास इज प्रोवाइडेड इन संस्कृत लैंग्वेज because the Vedas are written in Sanskrit language. So Vedic knowledge is provided in Sanskrit language. And after over the period of time, जो
संस्कृत लैंग्वेज है वो उसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होता गया, राइट। या नंबर ऑफ द पीपल हु स्पीक या हु स्पोक इंग्लिश डिक्रीज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इस वजह से जो संस्कृत का इंपॉर्टेंस है वो घटता चला गया, राइट। और संस्कृत बोलने वालों की संख्या कम होती गई, राइट। इस वजह से इट वॉज नॉट ईजी फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव वैदिक नॉलेज इन संस्कृत लैंग्वेज। इसीलिए इसको पुनः जो जितने भी हिंदू सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको एक संस्कार के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया, राइट। तो एट प्रेजेंट क्या होता है कि बच्चा वैदिक नॉलेज को अच्छे से एक्वायर कर सके, इसके लिए वह संस्कृत को भी अच्छे से उसकी संस्कृत को पहले इंप्रूव किया जाता है। इसके साथ ही अब उपनयन के बाद में उसको नॉलेज तो जो है प्रोवाइड कराया जाता है, परंतु जो वैदिक नॉलेज है वो अब वेदारंभ संस्कार के बाद में ही जो है प्रोवाइड कराया जाता है, राइट। तो जो हमारे हिंदू सोशोलॉजिस्ट थे, राइट, विद द एम ऑफ मेंटेनिंग द ट्रेडिशन ऑफ स्टडिंग द वेदास गेव द फॉर्म ऑफ अ न्यू सैक्रामेंट टू वेदारंभ एंड सेपरेटेड उपनयन फ्रॉम इट। तो उपनयन जो संस्कार था उससे सेपरेट कर दिया, राइट, और वेदारंभ जो है संस्कार को एक नया नाम दिया, राइट। और इस संस्कार के बाद से ही जो है फिर वैदिक नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। फिर नेक्स्ट इज केशांत और गोदान, राइट। तो केशांत संस्कार और गोदान संस्कार हो जाएगा। इस संस्कार में क्या किया जाता है सबसे पहले, राइट। सो इन केशांत संस्कार स्टूडेंट्स बियर एंड मुस्टेच आर मेड, राइट, मेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 16, राइट। देखिए कई बार वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट के माध्यम से, राइट, या जो लिबरल्स होते हैं उनके द्वारा जो है हिंदू संस्कारों को जो है टारगेट किया जाता है। तो जैसे अगर हम देखें कि जो वियर्ड है या मुस्टेज को फॉर द फर्स्ट टाइम जो है इसको परफॉर्म करना ये छोटी बात है, राइट। परंतु यहाँ पर जो एक्चुअल एक्टिविटी है वो इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है उसका, राइट। तो यहाँ पर केशांत संस्कार में होता क्या है, इन दिस संस्कार स्टूडेंट्स बियर्ड एंड मुस्टेच आर मेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 16। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिमाइंड द चाइल्ड, right, to remind the child and to get the information that child is entering at a young age। जैसे ही चाइल्ड की यंग एज स्टार्ट होती है उसकी सेंसेस जो है वो डेवलप होना प्रारंभ हो जाते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 16 अगर जो सेंसेस है उनको कंट्रोल नहीं किया गया, राइट, क्योंकि इसी समय पर ही जो हमारे सेक्सुअल ग्लैंड्स होती हैं, सेक्सुअल ग्लैंड्स भी जो डेवलप होती हैं वो 16 ईयर के बाद में ही होती हैं। तो 16 ईयर्स के पश्चात या 16 साल के पश्चात जो है सेंसेस डेवलप होती हैं, और यदि इस एज में कंट्रोल नहीं किया गया या चाइल्ड को अपनी सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करना नहीं सिखाया गया, सो डेफिनेटली वो अपने रास्ते से भटक सकता है, राइट। इसीलिए दिस संस्कार इज परफॉर्म्ड एंड दिस संस्कार इज द इंडिकेटर ऑफ द चाइल्ड एंटरिंग यंग एज। इसीलिए उसको ये संस्कार जो है वो परफॉर्म किया जाता है, राइट। द पर्पज ऑफ दिस संस्कार इज टू रिमाइंड द सेलिब्रेट वंस अगेन टू लिव द लाइफ स्ट्रिक्ट, राइट, मॉडरेशन एंड टू रिमाइंड द रूल्स ऑफ सेलिब्रेसी। क्लियर। तो यहाँ से सेंसेस एक्टिविटीज हो जाती हैं और इस संस्कार के माध्यम से अगेन जो चाइल्ड है उसको रिमाइंड कराया जाता है किसके बारे में, राइट, जो सेलिब्रेसी के बारे में, और जो रूल्स ऑफ स्ट्रिक्ट जो रूल्स होते हैं उनके बारे में अगेन जो है उसको अवेयर किया जाता है, राइट। और व्हेन दिस संस्कार इज परफॉर्म्ड देन एट लास्ट एक जो काऊ होती है, राइट, cow is provided for the guru as a dakshina, therefore it is also known as godan sanskara। clear। 14 is samavartan sanskar, or we can say that completing education sanskar, right। so samavartan sanskar, the first thing is that what is the meaning of samavartan। see, the literal meaning of samavartan is going back home, right, or going back home, which means that see in ancient times जो भी चाइल्ड, राइट, चाइल्ड कम टू आश्रम,
राइट, गुरु आश्रम फॉर गेटिंग द एजुकेशन, राइट। तो चाइल्ड गुरु आश्रम में एजुकेशन लेने के लिए आता था और जब उसका एजुकेशन कंप्लीट होता था तब वह अपने घर को वापस जाता था, उस समय पे ये संस्कार जो है किया जाता है, राइट। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ समावर्तन इज गोइंग बैक, राइट, एंड दिस संस्कार इज परफॉर्म्ड व्हेन द स्टूडेंट रिटर्न्स home, right, after completing the education. When student returns home, at that time this संस्कार is performed, right। और यहाँ पर इस संस्कार में क्या किया जाता है, right, on the performance of this संस्कार जो सेलिब्रेट होता है, right, celibate performs the last offering to the Vedic fire and vowing to the Guru। वह गुरु को प्रणाम करता है और आखिरी जो है ऑफरिंग्स देता है किसको, वैदिक फायर को। एंड आफ्टर दैट ही टेक्स स्पेशल बाथ, राइट, और वह स्पेशल बाथ लेता है, राइट, जो स्पेशल बाथ होता है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ द एंड ऑफ ब्रह्मचर्य आश्रम एंड बिगिनिंग ऑफ द गृहस्थ लाइफ, राइट, गृहस्थ जीवन। तो वो स्पेशल बात लेता है, वो इस बात का सिंबल होता है कि जो उसका ब्रह्मचर्य जीवन है, राइट, वो पूरा हो चुका है एंड ही कैन एंटर द गृहस्थ जीवन। एंड ऑन दिस, राइट, आफ्टर बाथिंग ऑस्पियस जो क्लॉथ्स हैं या मिरर्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, फ्लावर्स हैं, राइट, दीज आर प्रोवाइडेड फॉर द ब्रह्मचारी, राइट। जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, विच मीन्स वी कैन से दैट व्हेन चाइल्ड कम्स टू गुरुकुल, जब बच्चा गुरुकुल में आता है, ही हैज टू फॉलो स्ट्रिक्ट पाथ, राइट, उसको स्ट्रिक्ट पाथ को फॉलो करना होता था, राइट, वह अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता है, राइट, उसको जमीन पर सोना होता था और जितने भी जो लग्जरियस आइटम्स होते हैं वो उसको प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं ताकि वह ब्रह्मचर्य लाइफ को जो है अच्छे से फॉलो कर सके। जैसे ही उसका एजुकेशन पूरा हो जाता है, राइट, उसके बाद में यह जो है दिस संस्कार इज परफॉर्म्ड और वो स्पेशल बाथ लेता है। स्पेशल बाथ के बाद में उसको अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, मिरर्स दिया जाता है, राइट, और ऑर्नामेंट्स दिए जाते हैं और उसके बाद में फ्लावर्स दिए जाते हैं, राइट। एंड दीज आर द सिंबल्स दैट जो ब्रह्मचारी लाइफ है या जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो पूरा हो चुका है। अब व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम में एंटर कर सकता है और जो अपनी सेंसेस हैं, ये जो मटेरियल लाइफ है उसको एंजॉय कर सकता है, राइट। फिफ्थ इज विवाह और पाणिग्रह संस्कार या मैरिज या विवाह क्या हो जाएगा, आश्रम हो जाएगा। सो विवाह आश्रम या पाणिग्रहण क्या हो जाएगा, आश्रम हो जाएगा। सी पाणिग्रहण आश्रम और विवाह पाणिग्रहण संस्कार या विवाह संस्कार। सो विवाह संस्कार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कार ऑफ हिंदू सोसाइटी। तो जो 16 संस्कार हैं आउट ऑफ देम जो विवाह संस्कार है इसका भी हिंदू सोसाइटी में एक महत्वपूर्ण जो है प्लेस है, राइट। उसका कारण क्या है, द फर्स्ट थिंग दैट इट हैज इसका जो रिलेवेंस है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज क्या है कि इन हिंदुइज्म जो साल्वेशन है वो मटेरियल टू स्पिरिचुअलिज्म है। मतलब इन हिंदू सोसाइटी मैन कैन एंजॉय हिज लाइफ, man can enjoy his material life, then he would have spiritual life and he can get moksha, right. So he can get salvation following the life of materialism, then spiritualism and then he can have moksha। क्योंकि हिंदुइज्म में माना गया है कि जब व्यक्ति अपनी मटेरियल लाइफ से सेटिस्फाई हो जाएगा तभी वह पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिज्म को जो है समझ सकता है। यदि आप आपकी मटेरियल लाइफ को एंजॉय नहीं करेंगे सो डेफिनेटली यू कांट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। इसीलिए जब वह अपनी मटेरियल लाइफ को अच्छे से जी लेगा या अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई कर लेगा उसके बाद में वह स्पिरिचुअलिज्म को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है और उसकी वैल्यू को समझ सकता है और उसकी मटेरियल लाइफ एंजॉय करने के लिए ही क्या है, गृहस्थ आश्रम है, राइट। तो जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम की शुरुआत कहां से होती है, विवाह आश्रम से ही होती है। तो द बिगिनिंग ऑफ गृहस्थ आश्रम, राइट, द बिगिनिंग ऑफ गृहस्थ आश्रम जो है वो विवाह संस्कार से ही होती है। तो जैसे ही विवाह संस्कार परफॉर्म होता है या कुल मिलाकर हम ये कहें कि जैसे ही मैरिज होती है और मैरिज में ही जो पाणिग्रहण संस्कार होता है तो पाणिग्रहण संस्कार
होने से ही जो व्यक्ति है वो गृहस्थ आश्रम में क्या कर लेता है, प्रवेश कर लेता है। इसके साथ ही जो विवाह आश्रम है या पानी ग्रहण जो संस्कार है उसका भी इम्पोर्टेंस है। उसका कारण क्या है कि इन हिंदुइज्म जो मैरिज है उसको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन माना गया है और साथ ही साथ जो मैरिज है, राइट, इट इज अनब्रोकेबल बॉन्ड। तो हिंदुइज्म में मैरिज को अनब्रोकेबल जो बॉन्ड है वो माना गया है और इसीलिए इस जो पानी ग्रहण संस्कार है इसके माध्यम से जो विवाह संस्कार है या जो गृहस्थ आश्रम है उसके बारे में पूरी की पूरी जो है जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। इसके साथ ही जो विवाह आश्रम है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद में व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा और गृहस्थ आश्रम में वह धर्म, अर्थ, काम के माध्यम से अंत में जो है मोक्ष को भी प्राप्त कर लेगा। क्लियर। नेक्स्ट 16th हो जाएगा अंत्येष्टि संस्कार और क्रिमेशनल, राइट, क्रिमेशन सेरेमनी हो जाएगा। सो क्रिमेशन सेरेमनी और अंत्येष्टि संस्कार इज द लास्ट संस्कार ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट। सो दिस इज द लास्ट संस्कार ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट, एंड दिस इज परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ डेथ, राइट, राइट। तो जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है उस समय पर ये जो संस्कार है ये परफॉर्म किया जाता है, राइट। सेकेंड, ये जो संस्कार है ये प्री हिस्टोरिक इरा से ही जो है चला आता रहा है, राइट। प्रारंभिक काल से या हम ये कहें कि प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से ही अलग अलग जो जितने भी सिविलाइजेशन हैं या जो भी जितने भी कल्चर हैं उसमें क्रिमेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस प्लेस है, राइट। उसका कारण क्या है, राइट। द फैक्ट इज दैट एट द टाइम ऑफ डेथ there is no complete destruction of the body but its existence remains in some form or the other, right। और इस फिलॉसफी की वजह से ही इस अंत्येष्टि संस्कार को परफॉर्म किया जाता है क्योंकि इट इज बिलीव्ड दैट, राइट, इट इज बिलीव्ड दैट आफ्टर द डेथ, तो जैसे ही डेथ होती है उससे जो बॉडी है उसका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं होता है बल्कि जो एग्जिस्टेंस है वो किसी न किसी रूप में जो है बना हुआ रहता है। इसीलिए जो अंत्येष्टि या क्रिमेशन सेरेमनी है ये परफॉर्म की जाती है, राइट, एंड दिस इज परफॉर्म्ड टू प्रोवाइड हैप्पीनेस एंड पीस टू द सोल, राइट। तो जो सोल है उसको हैप्पीनेस और पीस मिल सके, देयरफॉर दिस संस्कार इज प्रोवाइडेड एंड दिस संस्कार इज परफॉर्म्ड, राइट, on the day of death till 10th and 17th day। तो डेथ होने के पश्चात से 10th से लेकर 17th डे तक जो है इस संस्कार को परफॉर्म किया जाता है, राइट। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फ्रॉम द डे ऑफ द डेथ देयर इज अ पीरियड ऑफ आसिच, राइट, इन द हाउस ऑफ डिसीज्ड फॉर द 10 to क्या हो जाएगा 13 डेज हो जाएगा, राइट। और इसके साथ ही ये जो संस्कार है, राइट, दिस संस्कार, राइट, दिस संस्कार हैज द मीनिंग दैट जो हिंदू जर्नी है, राइट, लाइफ की जो जर्नी है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। दिस जो है इसलिए इस इंपॉर्टेंस को जो है इस संस्कार को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्लियर। सो वी हैव स्टडीड द 16 संस्कार्स, राइट। नाउ वी विल स्टडी इंपॉर्टेंस और कंट्रीब्यूशन ऑफ संस्कार्स, राइट, इन ह्यूमन सोसाइटी, राइट। सो 11 marker question can be asked, right, what is the importance of sanskars in social life, or question can be asked how, right, how the sanskar contribute for the development of human life, right। तो ह्यूमन लाइफ में संस्कार किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं या संस्कार का इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन आइदर कैन बी आस्क्ड एज अ 5 marker question and 11 marker question। See, so we have understood the sanskaras are the guiding principle of human life, right। ये ह्यूमन लाइफ के सोफिस्टिकेशन के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए जो है इंपॉर्टेंस होते हैं। इसके साथ ही संस्कारास फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, राइट, प्यूरिफाई द ह्यूमन बॉडी एंड inspire all the physical and spiritual aspiration of man and to achieve salvation happily and was solving social problems। तो ये व्यक्ति को इतने योग्य बना देते हैं कि वो सोशल प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर पाए, राइट।
तो ये हम यहाँ पर कुछ जो बेसिक जो बातें हैं वी हैव अंडरस्टूड, राइट. नाउ वन बाय वन, right, through these points we will understand what is the importance of sanskar. First is sanskaras help in the sophistication and purification of human life. या हम एक तरीके से ये कहें कि सोशल लाइफ के डेवलपमेंट के लिए, राइट, सोशल लाइफ के डेवलपमेंट के लिए या ह्यूमन लाइफ के प्योरिफिकेशन के लिए या सोफिस्टिकेशन के लिए जो संस्कार हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं. और हम कह सकते हैं कि संस्कार के माध्यम से ही जो ह्यूमन है वो सोसाइटी का एक फुल सोशल जो है मेंबर बन जाता है. इसके साथ ही दीज संस्कार, राइट, दीज संस्कार फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, राइट. हमने देखा है कि एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ दीज संस्कारास आर परफॉर्म्ड, राइट. और इन संस्कारों के माध्यम से ही जो पर्सनैलिटी है उसको इम्प्रूव किया जाता है, राइट. जैसे जो विद्या आरंभ है या चूड़ाकरण है या फिर जो डिफरेंट संस्कार हैं उनके माध्यम से जो चाइल्ड है उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है, राइट. उसको अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंस जो है जानकारी बताई जाती है, राइट, या चाइल्ड को गाइड किया जाता है. और समय समय पर इन संस्कारों के होने से ही जो बच्चा है उसकी, जो चाइल्ड है उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है, डेवलप होती है, राइट. संस्कार्स आल्सो हेल्प इन फुलफिलिंग द फिजिकल नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग. तो जो फिजिकल नीड होती हैं, राइट, जैसे हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, साथ ही साथ मेंटल पीस प्रोवाइड करना. तो जो जितनी भी जो फिजिकल नीड्स होती हैं और मेंटल नीड्स होती हैं उनको फिलफिल करते हैं, राइट. संस्कारास प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल बेसिस फॉर द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज हो जाएगा. तो नॉलेज को कब एक्वायर करना चाहिए था, हमने देखा था कि जो उपनयन संस्कार है, वेदारंभ संस्कार है, राइट, उनके माध्यम से ही जो बच्चा है, राइट, उसको नॉलेज एक्वायर करने के लिए तैयार किया जाता है, राइट. और वी कैन से दैट चाइल्ड को जो है चाइल्ड के लिए प्रैक्टिकल बेसिस को जो है तैयार किया जाता है, राइट. Next is sanskaras are helpful in the development of moral qualities and prevention of culture, right. At different stage of life ये जो संस्कार हैं ये संपन्न कराए जाते हैं और कुल मिलाकर इनसे जो मोरल क्वालिटीज़ हैं वो इंक्रीज होती हैं और जो हमारी कल्चर है वो भी प्रिजर्व होता है. नेक्स्ट इज संस्कारास एक्ट एज अ ग्रेजुअल स्टेप ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन, राइट. तो ये स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए भी ग्रेजुअल स्टेप्स होते हैं, राइट. साथ ही विद द हेल्प ऑफ दीज संस्कारास, राइट, ह्यूमन कैन एक्सप्रेस थॉट्स, काइंडनेस, चैरिटी, जॉय, ग्रीफ, सिंपैथी, टॉलरेंस एंड जॉय etc, राइट. फिर संस्कारास जो है वो ह्यूमन लाइफ को मेंटल स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को झेलने के लिए कैपेबल बनाते हैं. या हम ये कह सकते हैं कि संस्कार जो हैं वो कैपेबल बनाते हैं जिससे जो चाइल्ड है वो मेंटल स्ट्रेस को झेल सकता है. साथ ही साथ जो उसकी फ्रस्ट्रेशन है वो भी समाप्त हो जाती है. साथ ही साथ देयर इज अ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. Being trained through sanskara, man becomes a capable and useful member of the society. कुल मिलाकर अगर हम देखें तो संस्कार के माध्यम से ही वह केपेबल एवं यूजफुल मेंबर सोसाइटी का बन जाता है और जो सोशल वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, राइट, मोरल वैल्यूज़ हैं उनको भी प्राप्त करता है और वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी फिर कार्य कर पाता है, राइट. ह्यूमन बीइंग बिकम्स सोशल ह्यूमन, राइट. तो वो जो है बायोलॉजिकल बीइंग से जो है सोशल बीइंग जो है बन जाता है. इसके साथ ही संस्कारास प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन टू द मैन. नेक्स्ट, गाइडलाइंस टू फॉलो द एथिकल आइडियाज. तो लाइफ की किस स्टेज में क्या काम किए जाने चाहिए उसके लिए ये गाइडलाइंस होती हैं. साथ ही साथ देयर इज ए कंप्लीट सोशलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, राइट. नेक्स्ट वी विल स्टडी एंड दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. यहां से 5 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, राइट. द इंपॉर्टेंस ऑफ संस्कारास इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, राइट. व्हाई दिस क्वेश्चन में भी आज जैसे 5 मार्कर क्वेश्चन. और ये भी किया जाता है कि व्हाई आर नॉट
वाई आर नॉट द संस्कारास परफॉर्म्ड एट अ प्रेजेंट टाइम। सो इस तरीके के जो है कई क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं कि जो संस्कार हैं उनका रिलेवेंस क्यों लॉस्ट हो रहा है या इंपॉर्टेंस क्यों डिक्रीज हो रहा है, इसके हम जो है रीजन को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि आई हैव टोल्ड यू दैट संस्कारास आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। तो शुरुआत में जो संस्कार परफॉर्म किए जाते थे उसमें बच्चे को या चाइल्ड को उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया जाता था या ऑब्जेक्टिव को एम्फेसाइज किया जाता था, परंतु बाद में जो ऑब्जेक्टिव थे उसको उतना फोकस नहीं किया जाता था और जो एक्टिविटीज होती थी, राइट, एक्टिविटीज होती थी उनको इंपॉर्टेंस दिया जाता था, राइट, चाहे वो चूराकरण हो जाएगा या निष्क्रमण हो जाएगा या अन्न प्रसारण हो जाएगा, राइट। तो जो जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती थी उनको तो परफॉर्म किया जाता था, उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता था उसको उतना फोकस नहीं किया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो प्रैक्टिकल था वो एक्सट्रीम हो चुका था। तो बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम रिचुअल्स या जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती थी वो एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गई थी, इसीलिए इनका रिलेवेंस जो है कम हो रहा है। सेकेंड, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सेकेंड वही है कि जो जितनी भी रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म किया जाता है, वो रिलीजियस एक्टिविटी को एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी जिनके माध्यम से जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स चाइल्ड को प्रोवाइड कराए जाते थे, तो वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था और जो संस्कार होते थे वो उनकी कम्बरसम और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गई थी, वो एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गए थे। इसीलिए धीरे धीरे लोगों ने जो कुछ संस्कार हैं उनको परफॉर्म करना या उनको परफॉर्म करने में कमी कर दी है। थर्ड इज चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, राइट। इन अर्लियर टाइम देयर वाज नॉट अ हाई लेवल एजुकेशन, उस समय पे हाई लेवल एजुकेशन नहीं था और वी डिडंट हैव साइंटिफिक नॉलेज, वी डिडंट हैव साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज थिंग्स, बट एट प्रेजेंट जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो चेंज हो चुकी हैं, राइट। एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव हो चुका है एंड प्रेजेंट टाइम हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज जो है अच्छी हैं और वी हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रेगनेंसी हो या चाइल्ड डेवलपमेंट हो, चाइल्ड का एजुकेशन कैसा होना चाहिए, तो उन सब की जो है सर्कमस्टेंसेस अब जो है चेंज हो चुके हैं। आवर सोसाइटी हैज़ बीन चेंज्ड, राइट, सर्कमस्टेंसेस हैज़ बीन चेंज्ड, देयरफॉर जो कुछ संस्कार हैं वो अपना रिलेवेंस जो है वर्तमान समय में खो चुके हैं या खो रहे हैं। नेक्स्ट, राइज ऑफ न्यू नॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन। सो वी आर एक्वायरिंग न्यू नॉलेज थ्रू मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस। फॉर एन एग्जांपल जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, थ्रू सोशल मीडिया, राइट, उससे हमें जो मॉडर्न नॉलेज है, चाहे वो सोशल नॉलेज हो या मॉरल नॉलेज हो, राइट, या जो साइंटिफिक नॉलेज हो, वो हमें इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जो है प्राप्त हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इज चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी जो है अब चेंज हो गया है, राइट। तो एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से ही हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, ये बच्चों को प्रोवाइड कराई जा रही है और मॉडर्न जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसके माध्यम से जो है ये जो संस्कार से इनका रिलेवेंस जो है कम हो रहा है, राइट। तो मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन जो है हमारी प्रेजेंट जो नेसेसिटीज़ हैं उनको फुलफिल करने में महत्वपूर्ण है, इसलिए मॉडर्न एजुकेशन को एम्फेसाइज किया जा रहा है। देन रैशनैलिटी हो जाएगा, वही कि जो भी संस्कार जब परफॉर्म किए जाते हैं, जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती है उनके पीछे जो है रैशनैलिटी अगर हम देखें तो वो अब जो है उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही है, राइट। साथ ही साथ रिफॉर्म जो मूवमेंट्स हैं, रिफॉर्म मूवमेंट्स के माध्यम से ही जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती थी या जो ब्राह्मण वर्ण था उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, राइट। इसी वजह से भी जो हमारी हिंदू सोसाइटी में इन मॉडर्न हिस्ट्री देयर वर मैनी रिफॉर्म मूवमेंट्स, और उन रिफॉर्म मूवमेंट के माध्यम से ही जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी जो कि कॉम्प्लेक्स थी उनको एक तरीके से उनके बारे में लोगों को अवेयर किया गया है। अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग, आल्सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ जॉइंट फैमिली, और जो कई ब्रेकिंग डाउन ऑफ क्या हो जाएगा, जॉइंट फैमिली हो जाएगा, देन मॉडर्न लाइफ स्टाइल हो जाएगा, राइट। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस जो
इंपॉर्टेंस है संस्कारा का वो डे बाई डे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो ओवरऑल वी कैन से दैट अर्लियर, देखिए जो रिलीजियस एक्टिविटी है, रिलीजियस एक्टिविटी तो आज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु उनके पीछे जो भी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। राइट? इफ़ यू स्टडी हिंदू धर्म, अगर आप हिंदू धर्म को डेप्थ में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी सोसाइटी में, राइट, हमारी सोसाइटी में हम रिवर को वर्शिप करते हैं, ट्रीज को वर्शिप करते हैं, राइट, सन हो, मून हो, हम वर्शिप करते हैं, तो उनके पीछे कुछ सिंबल है। तो वैसे ही अगर हम देखें जो संस्कार हैं, संस्कार में जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो आज रिलेवेंट नहीं है, परंतु उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आज भी रिलेवेंट है, कल भी रिलेवेंट रहेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव हैं वही के वही वी नो, राइट, जितने भी संस्कार हमने पढ़े हैं हमें पूरी की पूरी जानकारी है कि ऐसे इस समय पर ये जो है कार्य किया जाना चाहिए, या बच्चे को इस तरीके से सोशल लाइफ या इस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव जो थे संस्कार के वो आज भी रिलेवेंट है और वो हमेशा रिलेवेंट रहेंगे। राइट? तो लोगों को, या हम एक तरीके से कहते हैं मासेस को एक्सप्लेन करने के लिए रिचुअल्स के माध्यम से इन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कराया जाता था, या हम ये कहें कि जब ये संस्कार का परफॉर्मेंस अर्लियर टाइम में जब ये संस्कार परफॉर्मेंस किए जाते थे तो उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो ऑब्जेक्टिव होता था उसको एक्सप्लेन किया जाता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दीज संस्कार्स, ऑब्जेक्टिव को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था और जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी, राइट, उनको फोकस किया जाता था, इसलिए काफ़ी ये कंबरसम प्रक्रिया बन गई। राइट? और दूसरी चीज़ जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसमें भी ये जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं ये रैशनल नहीं है, इसीलिए भी इनका जो इम्पोर्टेंस है वो डे बाई डे डिक्रीज हो रहा है। राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट संस्कारास। इन नेक्स्ट lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.